Good morning, children, class 5. We will continue with our lesson number 6, air and water. If you remember, we talked about what air is. Air is actually a mixture of gases. Atmosphere is comprising of atmosphere. The atmosphere of our earth is comprised of the gases, which you should be knowing. Air is a mixture of various gases. These gases are useful for both plants and animals. Okay, now oxygen, nitrogen and carbon dioxide are the main gases present in the air. Okay, the percentage of these gases are oxygen 21%, nitrogen 78% and carbon dioxide and other gas 1%. Now what is oxygen? Oxygen is the most important gas for all living beings. Both plants and animals use atmospheric oxygen in the process of respiration. I told you about what respiration is. Remember, respiration is a process by which you take in oxygen and give out carbon dioxide. Now who do this? The animals and human beings, they take in oxygen and they give out carbon dioxide in the process of respiration. Whereas plants, what do? They take in carbon dioxide and they give out oxygen. Okay. Now this atmosphere, they take in the process of photosynthesis. Remember, they take in carbon dioxide and they give out oxygen. But plants also respire. Plants, they also take in oxygen and give out carbon dioxide. Now we breathe in air rich in oxygen and give out air which is rich in carbon dioxide. This oxygen oxidizes the food in the body tissues and they give us energy. Now this energy is called ATP. Always remember, ATP is the form of energy. Full form is adenosine triphosphate, which is not mentioned here, but just remember for your knowledge. Now oxygen supports in burning. Anything that burns is mainly because of the oxygen present in the air. Now next we'll move to nitrogen. Nitrogen is the most abundant gas in air. It neither burns nor help in burning. नाइट्रोजन फंक्शन क्या है? वो ना ही जलता है और ना ही वो हेल्प करता है बर्निंग में. ना ही वो खुद बर्न करता है, ना ही वो हेल्प करता है बर्निंग में. इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस. Nitrogen is used in packaged food as it prevents the growth of microorganisms. Though both plants and animals need nitrogen for their growth, they do not use it directly from the air. The bacteria present in the soil provides nitrogen to plants. Fertilizers are major source of nitrogen for plants. Humans get nitrogen from both plants and animal source of food. Okay. तो यहाँ पे रिमेंबर, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिसमें बहुत प्रोटीन होते हैं. ओके, जैसे लेग्यूम्स, जैसे एग्जांपल चना दाल, जैसे एग्जांपल मूंग. ओके, नाउ मूंग एंड gram, all these are the examples of leguminous plants. Now what do leguminous plants have? Their root nodules have bacteria in them which help the atmospheric nitrogen to come into the soil. वो हेल्प करता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लाने के लिए ज़मीन में, सॉइल में, ताकि हमारा प्लांट्स बेहतर ग्रोथ हो. ना ह्यूमन्स गेट नाइट्रोजन. इस प्रोसेस को, इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. तो सी हाउ बैक्टीरिया आर वेरी यूज़फुल. ये बहुत यूज़फुल बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है प्लांट्स में नाइट्रोजन लाने में. कहाँ से? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से. ओके, नाउ एग्जाम्पल है और भी है. ह्यूमन्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ना अगर हम लोग प्लांट्स ईट करेंगे, इफ़ वी ईट प्लांट्स ऑफ कोर्स वी विल गेट नाइट्रोजन फ्रॉम देम, एंड इफ़ वी ईट एनिमल्स ऑफ कोर्स दे विल ऑल्सो गेट नाइट्रोजन बिकॉज दे विल हैव नाइट्रोजन, बिकॉज उन्होंने भी जो प्लांट्स खाया होगा ना, तो इसलिए उनके बॉडी में, उनके प्लांट्स में या एनिमल्स में नाइट्रोजन होते हैं. नेक्स्ट गैस इज़ नेक्स्ट क्या? तो हम लोगों ने ऑक्सीजन पढ़ा, नाइट्रोजन पढ़ा. ना सी द पिक्चर. 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड 1% इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. नाउ a very little amount of carbon dioxide is present in the atmosphere.
हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होते हैं। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करे ना। इसमें क्या होता है? इसमें फूड प्रिपेयर होता है। प्लांट्स लीव्स जो होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं खुद के लिए। ऑन बर्निंग कोल एंड वुड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ना कुछ भी अगर कोल को या वुड को बर्न कीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इट डज़ नॉट हेल्प इन बर्निंग, सो इट इज़ यूज टू पुट आउट फायर। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक। इट इज़ नेचुरली, सॉफ्ट ड्रिंक में भी यूज़ होता है। इट इज़ नेचुरली एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट बाय लिविंग बींग्स। ना लिविंग बींग्स जो ब्रीथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो इस प्रोसेस से हमारे बॉडी में, हमारे प्लांट्स में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आता है ना। अदर गैसेस जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन पढ़ चुके हैं हम लोग। देयर आर अदर गैसेस ऑल्सो जैसे हीलियम, नियन, हाइड्रोजन, आर्गन, क्रिप्टन, ओजोन आर सम अदर गैसेस दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस होते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन। ओके, ओजोन। एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक। ओके, ना डस्ट भी होते हैं एयर में, वाटर वेपर भी होते हैं, स्मोक भी होते हैं। जब हमारे मॉइस्चर, हमारे एटमॉस्फेयर में जब मॉइस्चर, दैट मीन्स वाटर वेपर ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। दिस वाटर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ना वाटर कहाँ से आता है? ये ओशंस, लेक्स, सीज से पानी आते हैं और इवापोरेट होके ये स्टीम में, वाटर वेपर में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ऐसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। दिस मेक्स द वेदर ह्यूमिड, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर ह्यूमिड हो जाता है, राइट। नाउ वी completed these three gases. Now in the next part we'll come to know about we'll come to the point that is air has weight. Now after studying other gases, there is an exercise given to you. Air is a dash of gases. Air is a mixture of gas. The process of converting a liquid into vapor is called vaporization कहते हैं, या फिर लिक्विड को जब हम लोग मेल्ट करके तो उसे क्या कहते हैं वेपर में? इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ओके, और ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. The gas present in the air in the greatest amount is of course nitrogen. Now see the exercise. Please do this in your science notebook. Now we'll move to the properties of air. Now air का property क्या है? Air has weight. Now एक proof कैसे हुआ है कि air has weight? Now हम लोगों ने beam balance इस पे proof किया है. अगर आप एक बलून रखोगे या फुटबॉल रखोगे जिसमें एयर है तो उसमें वेट आपको पता चलेगा, और एक इन्फ्लेटेड बलून रहेगा, एक डिफ्लेटेड बलून रहेगा. डिफ्लेटेड मतलब जिसमें हवा नहीं है, और इन्फ्लेटेड जिसमें हवा है. तो जाहिर है द इन्फ्लेटेड बलून विल बी हैवियर, राइट. तो इससे पता चलता है दैट एयर हैज़ वेट. नेक्स्ट पॉइंट इज एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर के अंदर स्पेस होता है. एयर हैज़ वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब दैट ऑक्यूपाई स्पेस. जैसे एक टब ले लो आप, उसको आप उसमें पानी जब डालोगे तो यू विल फाइंड, टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन. आप जब ग्लास को से पानी निकाल बाहर करोगे तो यू विल फाइंड, जेंटली प्रेस इट डाउन, यू विल सी दैट वाटर डज नॉट एंटर इन द ग्लास. वाटर कैन नॉट एंटर द ग्लास एट इट इज़ फुल. तो आप देखोगे उसके अंदर एयर भी है. तो एयर ने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है स्टिल इट्स, और इसी की वजह से हमारे बॉडी में एयर होता है. नेक्स्ट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर में प्रेशर, एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ना एयर टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट. ये तो प्रूव हो चुका है. एनीथिंग दैट हैज़ वेट एक्सर्ट्स प्रेशर. ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी किसी भी मैटर में जब वेट होता है तो वो एक सर्टेन प्रेशर एक्ट करता है, एक्सर्ट करता है, गिव आउट करता है. जैसे हमारे पास वेट है तो इफ़ वी विल स्टैंड एनीवेयर तो हमारे प्रेशर से, हमारे लेग से प्रेशर जनरेट होगा. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. एयर का खासियत क्या है कि वो हर डायरेक्शन में प्रेशर देता है. दिस प्रेशर इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर. एग्जाम्पल देखिए, एयर प्रेशर से हम लोगों ने डिस्पेंसर से पानी निकाला. तो ये सब होता है बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर. सी द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. नाउ वी टेक प्लास्टिक बॉटल filled with water and pen. Take a
capped plastic bottle filled with water. Take a pin and poke a hole in the side of the bottle. तो अगर आप एक बॉटल में होल डालोगे, एक बॉटल है आपके पास जिसमें पानी डाल दो और उसमें होल्स डाल दो और उसको आप जब प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि उस होल से इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज़ हो रहा है. तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज एयर इज़ हैविंग प्रेशर. ओके, नाउ विल डू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. सी द पिक्चर. एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. तो आज हम लोगों ने थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पढ़ा. एयर हैज़ वेट. Okay, number 2, air occupies space, that means air has volume also, and the third one is air exerts pressure. Now in the next class we'll do the remaining the next part. Till then I want you all to please go through the exercise, go through the lesson very well. Thank you so much children. Have a nice time.